Just a second, I'm just opening some documents. Do you have this what you can say Eclipse? Yes, ma'am, we have. Okay, हाँ या Yes. जावा हो गया है आपका तो या फिर हाँ, that's right. right. Yes, ma'am. So which Eclipse you're using currently? Uh, I have Neon Hmm. because in office I also work on Eclipse Neon. Okay, great. Yeah. And you, Karuna and Pallavi? करुणा आपके पास कौन सा Eclipse है? Like she is unable to speak. Okay, Yeah. Pallavi. I don't know version of this Eclipse. Okay, fine, No, fine. it's Selenium Eclipse ID written. हाँ, yeah. Recently only, like I have downloaded it before 2 months. Then it's a new version. Okay, then great, no problem. Eclipse Neon is good. Eclipse, and this is ID is also good. Fine, no problem. You have JDK? Do you have JDK? Which version of JDK? Yes, I think JDK latest version I have. Okay. And you, Pallavi? I'm not aware actually. I've downloaded a lot of things related to Selenium and Java. I'm not exactly sure. Okay. And you earlier you have done with JDK, no? Means Java is done, right? Yeah, So JDK Java कौन सा यूज कर रहे हो आप? 8, 9, 10 that क्या है that आपका या is लेटेस्ट 8 वर्जन? 8 JDK 8. it. Then Hmm. Yes. it might be it. JDK Okay. 16 is written on this folder. Okay. JDK 6. 16.0. I don't know. The हाँ. folder I'm But actually looking. if it is latest, then it is fine. No It is problem. latest only. Latest Yeah. download. Yeah. There is no problem. Yeah. If you have older, then some classes, some things might not be there. So that's why I ask you. That's it. Okay, okay. It's Hmm. latest one. Yeah. Do you have browsers on your system? Generally, we all have it, but still asking. Yeah, all browsers. Good. Yes. Good. I think Karuna is facing network issue. Okay. करुणा आपको आवाज आ रही है? हेलो? करुणा, can you hear me? Yes, Karuna. I think Karuna is unable to hear. Yes, yes, I think some network issue. Hmm. Just a second. I'll just check with her.
Okay, so we shall start now. Karuna has also joined again. Okay, Karuna, Yes, ma'am. I wanted to ask you that which version I of JDK you are having? जेडी की इक्लिप्स आईडी है मैम मेरा Okay, 4.21 समथिंग था. तो Eclipse तो लेटेस्ट वाला है ना आपके पास? हाँ लेटेस्ट वाला है मैम. गुड. JDK कौन सा यूज कर रहे हो? JDK जावा 18, जावा 16 है, 15 है, 8 है, 9 है, क्या है, 18 कौन है सा? मैम. हाँ, 18 है 18 है मैम. ओके गुड. सो लेटेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके. हाँ हाँ, 8 या 8 के ऊपर का चाहिए बस. यही था मेरा कि हाँ. हाँ. और Eclipse भी आपका लेटेस्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो ऑल ऑफ यू वी हैव टू डाउनलोड फॉर वेब ड्राइवर. We have to download WebDriver. So first I will tell you how to download it, and then I will start with the introduction. Okay. So let me share my screen. You can see this site, Selenium Dev, selenium.dev. If you need, I will share the URL. यहाँ पे मैंने URL शेयर किया है तो Selenium का. उस साइट पे जाना है आपको. Selenium साइट पे जाने के बाद हमें किस पे जाना है? डाउनलोड्स. Yes. Are you like all are there on this page? yes, ma'am. Karuna? मैम मैं आफ्टर लेक्चर कर लूंगी डाउनलोड क्योंकि नेटवर्क इशू है ना बहुत तो नहीं हो रहा है वो मेरा लोडिंग में जा रहा Okay. है. चलेगा चलेगा, कोई नहीं. ठीक है. सो ये आपको ये डाउनलोड करना है, Selenium Java. ओके. यू टू क्लिक ऑन दिस. या इसके पहले वाला वर्जन चाहिए हमें तो यहाँ से मिल सकता है, फर्स्ट अर्लियर वर्जन्स. यू कैन डाउनलोड दिस वन ऑल्सो. इट्स अर्लियर वी वर यूजिंग इसके पहले वाला वर्जन, बट अभी 4 आ चुका है. सॉरी, ये जावा स्क्रिप्ट है, हमें ये वाला चाहिए, Selenium Java. ये अभी अभी देखो October 13 को ये हुआ है, स्टेबल है. ओके. सो जस्ट डाउनलोड इट. मेरे पास ऑलरेडी है, इसके पहले वाला वर्जन है फाइन, लेकिन ये देखो ये वाला इसके पहले वाला वर्जन है. सबका हो जाने के बाद बताओ मुझे. डाउनलोड हो गया? Yes, ma'am. ओके. तो मैं आपको बताती हूँ फिर Eclipse के साथ उसको कैसे करना है. तो थोड़ा फिर अभी आपका अच्छा डाउनलोड तो हो गया, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हमें लगेगी. सबके पास क्रोम ड्राइवर है ना? सो क्रोम ब्राउज़र पे अगर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो वी विल बी नीडिंग क्रोम ड्राइवर. ओके. सो हम लोग ये भी डाउनलोड करके रख लेते हैं. ऑल ऑफ यू यहाँ पे ध्यान से देखो. सेम डाउनलोड्स पेज पे ब्राउजर्स में
ब्राउजर्स में अगर आप देखोगे तो ये देखो क्रोम, आपके क्रोम का वर्जन कौन सा है वो आपको दिखना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखो, विल गो टू दिस 3 डॉट्स, देन यू कैन सी हेल्प। ओके, व्हेन यू गो टू हेल्प अबाउट गूगल क्रोम, okay, you can see my Chrome version is 95. So accordingly I have to download the Chrome driver exe file. Okay, तो मेरा Chrome का वर्जन जो है वो 95 है, तो उसके हिसाब से मैं Chrome की exe फाइल डाउनलोड करूंगी, Chrome ड्राइवर exe की। ये क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें सिलेनियम से स्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन करनी है ना, तो उसके लिए क्रोम ब्राउजर पे रन करने के लिए वी नीड क्रोम ड्राइवर। ये है, यहाँ पे देखो लेटेस्ट टेबल रिलीज दिख रही है 95। ये देखो ऑल ऑफ यू, you can see latest beta release Chrome driver 96, latest stable release Chrome driver 95। ओके, सो यहाँ पे ये लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है। अगर ये वाली नहीं चाहिए, इसके पहले वाला वर्जन है क्रोम का, तो यहाँ पे जा सकते हैं डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा क्रोम 95 है, तो मुझे ये चलेगा क्रोम ड्राइवर 95। सो उसमें किसके लिए चाहिए मुझे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो क्रोम ड्राइवर Win32, I have to download this Chrome driver Win32। I have downloaded it। अगर आपको पहले वाला वर्जन है क्रोम का तो डाउनलोड्स में जाना है। ये देखो डाउनलोड्स में आपको सारी रिलीजेस दिखेगी। 94 है आपका क्रोम, तो 94 लगेगा आपको। कौन सा है क्रोम का वर्जन आपके पास? 95 है। ओके, सबके पास, बाकी लोगों के पास? यस, हाँ yes अलग। ma'am, 95. एंड करुणा, अनुराधा? 95 है मैम मेरा भी। गुड, तो आई गेस सबके पास 95 है, सो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी ये वाला कर सकते हो, स्टेबल डिजीज क्रोम ड्राइवर 95। किया डाउनलोड? हाँ yes. ओके, यस फाइन, मैम। गुड। ओके, तो अभी आगे क्या करना है बताती हूँ मैं आपको। ओके, अगर फायरफॉक्स पे रन करना है आपको, तो फायरफॉक्स के लिए भी आपको ड्राइवर EXE चाहिए होता है, बट फिलहाल के लिए अदरवाइज क्रोम इज़ ओके। अगर आपको फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर सब पे रन करना है, तो जैसे हमने क्रोम ड्राइवर EXE डाउनलोड किया, वैसे फायरफॉक्स के लिए आता है घीको ड्राइवर। माइक्रोसॉफ्ट एज पे रन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एज का ड्राइवर EXE आता है। ये देखो एज, सो एज के अंदर भी अगर आपको एज पे रन करना है, सो डॉक्यूमेंटेशन में जाके करो, ये वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ ही करो, मैं देखती हूँ, 1 मिनट है। माइक्रोसॉफ्ट एज, उसका कौन सा वर्जन है मेरे पास? अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज,
आई हैव 95। सो ये देखो 95 है, तो मैं 95 का ही लगेगा मुझे ड्राइवर। मेरा विंडोज़ जो है वो 64 बीट है। ये सबसे ऊपर वाला मैं डाउनलोड कर रही हूँ। आई थिंक मेरा एज जो है यही वाला लीजिए। Ma'am, what's that Mac? Is it for Windows or मैक ऑपरेटिंग मैकिनटॉश। ये विंडोज़ की एक्सक्यूज मी। 64 बिट है आपका, तो 64 वाला लो। मैक लिनक्स वगैरह है, हमें ये वाला लेना है, विंडोज़ वाला। किया डाउनलोड? Yes, ma'am. फिर वैसे ही आपको फायरफॉक्स पे रन करना है, तो फायरफॉक्स के लिए लगेगा। मेरे पास फायरफॉक्स भी है। नाइन्टी थ्री, इट इज 93। मेरे पास फायरफॉक्स का 93 वर्जन है। फायरफॉक्स के लिए भी हमें डाउनलोड करना है। आपने सबने माइक्रोसॉफ्ट एज का किया डाउनलोड? yes. Yes, ma'am. गुड। ओके, सो फायरफॉक्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू फायरफॉक्स। गीको ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है, अगर आपके मशीन पे फायरफॉक्स है तो। फायरफॉक्स के लिए गीको ड्राइवर ही एक सी आती है। Yes, to Geeko driver releases. See here, you have to click. आई थिंक मुझे लेटेस्ट वाला ही लगेगा, तो यही लेटेस्ट है। दिस वन इज लेटेस्ट। यहाँ से लेना पड़ेगा। विंडोज 64। ऑल ऑफ यू ये देखो, Geeko driver version 30, Win 64 zip। I have downloaded this Geeko driver version 30। किया सबने डाउनलोड?
Yes or no? Yes, ma'am. Excuse me. Yes, Yeah. ma'am. Yeah, thank you. Yeah. So now all of you, what we have to do is, okay, we are going to first I'll give you introduction. Keep it in downloads. अभी फिलहाल डाउनलोड्स में ही रहने दो. मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर हम लोग उसका यूज कैसे करना है बताते हैं आपको. ओके, सो अभी फर्स्ट see all of you, there are various tools available in the market. ओके, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं. ओके, सो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, लाइक विच ऑल टाइप्स ऑफ टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, विच ऑल कैटेगरीज ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट. So like the first category or the all the automation tools are basically divided into three categories. The first one is test management tools, second is test execution or test automation tools, and the third one is defect tracking tools. Okay, so these are the three basic categories of automation tools. Okay, test management, test execution and defect tracking. Test management tools का मतलब क्या? Test management tools are the tools which allows you to manage testing life cycle. Test management tools are the tools which allows you to manage testing life cycle, testing process. With test management tools, okay, we can manage the testing life cycle or testing process. Okay, we can write the requirements in the test management tool. We can create test plan, we can create test cases, we can execute them. Okay, so we can manage the complete testing life cycle or testing process. जिस एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करना है उसका रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, उसके लिए प्लान बना सकते हैं, उसके लिए टेस्ट केसेस बना सकते हो. मैनुअल ऑटोमेशन दोनों टाइप के टेस्ट केसेस बनाए जा सकते हैं. उसके बाद टेस्ट केसेस को एक्चुअली रन कर मतलब हम लोग एग्जीक्यूट करके टेस्ट केस का स्टेटस वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं. उसके बाद देख सकते हैं कौन से टेस्ट केसेस पास हो गए, कौन से टेस्ट केस फेल हो गए. ओके, सो ये पूरा टेस्टिंग लाइफ साइकिल जो होता है वो हम लोग कहाँ पे मैनेज कर सकते हैं? टेस्ट मैनेजमेंट टूल में. रिक्वायरमेंट लिखना, प्लान बनाना, टेस्ट केस बनाना, मैनुअल ऑटोमेशन दोनों टाइप के एक्सक्यूज मी, मैनुअल ऑटोमेशन दोनों टाइप के टेस्ट केस बना सकते हैं, दोनों टाइप के टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और एग्जीक्यूट करने के बाद रिपोर्ट्स ऑटो जनरेट होती है टूल्स के अंदर. सो वो रिपोर्ट्स हम लोग एनालाइज कर सकते हैं. And then we can find out how many test cases are passed, how many test cases are failed, okay, and whether any test cases are there which are not executed. Okay, so you can see like you can analyze the results. Okay, but if any test case gets fail, you cannot report the defect in test management tool. If any test case gets fail, you cannot report the defect in test management tool. If test case gets fail, you need to report the defect in defect tracking tool. If test case gets fail, you need to report the defect in a defect tracking tool like Bugzilla or Jira or any other tool. टेस्ट मैनेजमेंट टूल में हम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट लिखना, टेस्ट केस बनाना, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करने के बाद टेस्ट केस चेक करना पास हुए या फेल हुए. लेकिन अगर कोई टेस्ट केस फेल हो जाता है तो उसके लिए डिफेक्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा. तो डिफेक्ट रिपोर्टिंग के लिए अलग टूल होते हैं जैसे बगजिला. सो इन बगजिला वी कैन रिपोर्ट डिफेक्ट्स, वी कैन लॉग इन एज अ टेस्टर, वी कैन रिपोर्ट डिफेक्ट्स, and then defect management process or defect life cycle is there, okay, which is getting followed. कभी कभी कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पूरा एम आप कर सकते हो, मतलब उसमें आप टेस्ट केस भी लिख सकते हो, डिफेक्ट भी रिपोर्ट कर सकते हो. ओके, जैसे HP का टूल है ALM, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. पहले इस टूल का नाम था क्वालिटी सेंटर.
और उसके पहले नाम था टेस्ट डायरेक्टर. Okay, now it is ALM, Application Lifecycle Management. So it's an HP tool, or actually originally it was developed by Mercury, and now it is with HP. So HP का जो ALM है उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पूरा टेस्ट मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग कर सकते हो. जैसे जो जिस एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करना है उसके लिए रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, उसके लिए प्लान बना सकते हैं, उसके लिए टेस्ट केस बना सकते हैं, टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जो टेस्ट केस अगर कोई फेल हो जाता है कोई टेस्ट केस, तो उसके लिए उसी के अंदर डिफेक्ट भी रिपोर्ट किए जा सकते हैं. आपको डिफेक्ट ट्रैकिंग के लिए कोई अलग टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर पूरा आप एक ही टूल के अंदर कर सकते हो. सिमिलरली जीरा भी ऐसा ही टूल है. जीरा में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है. Jira is a licensed tool. It is developed by Atlassian. Okay. After that, the next category or next type of tool is execution tools. Test execution tools. Test execution tools allow you to execute the test cases. If I don't want to execute the test cases manually, okay, I want to get it executed by tools, then you can execute the tools, you can execute the scripts, you can execute your test cases using tools. जैसे हम लोग क्या करते हैं मैनुअल टेस्टिंग में, टेस्ट केस को मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हैं. मैन्युअली एग्जीक्यूट करने का मतलब मैंने लास्ट सेशन में बताया था. मतलब अभी अगर मुझे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना नहीं है, मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे कोई रोबोट या किसी टूल से मेरे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो हम लोग टूल यूज कर सकते हैं. टूल को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, and then based on instructions tool execute the test cases on the application. ओके, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे एप्लीकेशन को सिलेनियम टेस्ट करे, तो सिलेनियम को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, सिलेनियम मेरे एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा. Okay, so these tools allow you to execute test cases on the application. It allows you to test the application. So that's why it is known as test execution tools. चाहे QTP हो या UFT हो या राशन रोबोट हो, टोस्का हो, ये सारे टूल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और फिर ये टूल्स एप्लीकेशन पे क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. बट उसके लिए पहले आपको इन टूल के अंदर स्क्रिप्ट्स बनाने पड़ते हैं. एक बार स्क्रिप्ट बन गए, फिर आप रन करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये टूल्स क्या करेंगे, एप्लीकेशन को वैलिडेट करेंगे बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन. These tools are just like robot. Instead of doing the things manually, working manually, what we do, we use machines, and machine does the work for us. The same way tool does the testing for us. But first you need to give the instructions. You need to program the tools. And the last type of tools is defect tracking tools. Defect tracking tools allow you to report defects and also track the defect. मतलब आप डिफेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो, फिर चेक कर सकते हो कि वो डिफेक्ट असाइन हुआ कि नहीं हुआ, फिक्स हुआ कि नहीं हुआ. ओके, just go through it all of you and let me know whether you have understood it or not. Yes, ma'am, you can go ahead. Yes. Okay, thank you. Karuna.
Yes, ma'am. Okay, thank you. What is Selenium? Selenium is an open source tool, or you can say Selenium is a suite of tools used for functional testing and regression testing based on web-based applications. Selenium एक open source tool है. Open source मतलब it is free of cost. It is not licensed tool. So you can download it free of cost. You can use it free of cost. So it's an open source tool. Okay. But Selenium जो है ये सिंगल टूल नहीं है. Selenium के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स है. इसके लिए Selenium को आप ऐसा बोल सकते हो, Selenium is a suite of tools. It's a suite of tools. Suite of tool मतलब collection of tools. Suite means what? Suite is nothing but a collection. So Selenium is a suite of tools or collection of tools for functional testing and regression testing on web applications. किसी भी वेब एप्लीकेशन पे अगर फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग करना है तो आप Selenium यूज कर सकते हो. What is functional testing? What is regression testing? I think I have told you or not. I don't remember exactly. I think I have told you in the last session. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So Selenium is a tool which is used for functional testing and regression testing on web-based applications. Selenium has three components. One is Selenium IDE, second is Selenium WebDriver, third is Selenium Grid. Selenium has three components: Selenium IDE, Selenium WebDriver, and Selenium Grid. Selenium IDE stands for Selenium Integrated Development Environment. क्या बोला मैंने? Selenium IDE stands for Selenium Integrated Development Environment. Okay, Selenium IDE stands for Selenium Integrated Development Environment. Okay, Selenium has three components. One is Selenium Integrated Development Environment or Selenium IDE. Second is Selenium WebDriver and third is Grid. मतलब exactly क्या? ये सारे components की functionality क्या है? Selenium IDE जो है, it is a basic component which allows, in Selenium IDE, scripts are getting generated automatically. अगर आपको जावा नहीं आता है और आपको एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए Selenium यूज करना है, ओके, मैन्युअली टेस्ट नहीं करना है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको Selenium का जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो नहीं पता, और आपको कोई भी टूल अगर यूज करना है तो उसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए. अगर Selenium का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको नहीं पता है और फिर भी आपको एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए Selenium यूज करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? Selenium IDE. Selenium IDE के अंदर हमें स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है. Selenium IDE में स्क्रिप्ट्स ऑटो जनरेट होती है. एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी आपको टेस्ट करनी है Selenium के थ्रू, उसको Selenium के अंदर रिकॉर्ड करो. जैसे आप Selenium के अंदर वो रिकॉर्ड करते हो IDE के अंदर, स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एप्लीकेशन का लॉगिन लॉगआउट, एप्लीकेशन के अंदर का लॉगिन लॉगआउट टेस्ट करना है, I want to test login logout in the application with Selenium. So in that case, what I can do? I can record login and logout feature. Okay.
मैं सेलेनियम आईडी में जाऊंगी, रिकॉर्डिंग ऑन करूंगी और उसके बाद एप्लीकेशन ओपन करूंगी। एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन पेज पे जाऊंगी, उसके बाद लॉगिन नेम एंटर करूंगी, पासवर्ड एंटर करूंगी, लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगी और चेक करूंगी कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। और जैसे ही मेरा ये रिकॉर्ड मतलब पूरा लॉगिन लॉगआउट मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगी। ओके, सो जस्ट जैसे आप आवाज रिकॉर्ड करते हो ना या वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो सेम वे आपको सेलेनियम में जाना है, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, उसके बाद एप्लीकेशन ओपन करो, एप्लीकेशन में लॉगिन लॉगआउट का एक्शन परफॉर्म करो और जैसे लॉगिन लॉगआउट हो जाता है रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। जैसे ही सेलेनियम के अंदर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो जो आपने रिकॉर्डिंग टाइम पे किया उसके लिए स्क्रिप्ट जनरेट होता है। सो जो आप रिकॉर्ड करते हो उसके लिए ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट जनरेट होता है। फिर आप उस स्क्रिप्ट में चेंजेस करना चाहो चेंजेस कर सकते हो, स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। So in Selenium IDE, it is a basic component which allows to generate the scripts using record and playback mechanism. But Selenium IDE can only, you can install Selenium IDE only on Firefox. And now also you can install it on Chrome, but separately install करना पड़ता है। Chrome के लिए अलग Selenium IDE आता है और Firefox के लिए Selenium IDE अलग आता है। So Selenium IDE has some limitations. As I told you that Selenium IDE can only work on Firefox. Up till now, it was just working on Firefox. Nowadays, like Selenium IDE is also available for Chrome browser. So you can also install Selenium IDE on Chrome and you can use it on Chrome. But still, it can work only on Firefox and Chrome. Let's say if I want to execute my scripts on all the browsers which are available, all the browsers which are there in the market, then in that case, I cannot use Selenium IDE. If I want to execute my scripts on all the browsers, I can use Selenium WebDriver. Selenium WebDriver supports all the browsers. With WebDriver, you can execute your script on all the browsers, like whether it is a Firefox browser, whether it is Chrome browser, Microsoft Edge, Opera, Safari, all the browsers. Selenium WebDriver supports all the browsers, but at a time your scripts will get executed on one browser. वेब ड्राइवर सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक टाइम पे आपका जो स्क्रिप्ट होता है वो एक ही ब्राउजर पे रन होता है। जैसे मैंने स्क्रिप्ट बना लिया, अब मैं रन कर रही हूँ, तो एक टाइम पे एक ही ब्राउजर पे वो स्क्रिप्ट रन होता है। जैसे मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है क्रोम ब्राउजर, तो क्या होगा, मेरा जब रन होगा स्क्रिप्ट तो क्रोम ओपन होगा, क्रोम पे वो एप्लीकेशन ओपन होगा और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। With WebDriver, with WebDriver you can execute the script on any browser. It supports all the browsers, but at a time it gets executed on just one browser. Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I have one question. Yeah, but I have not explained fully. I have just given you the idea, but still you can ask. Yeah.
या मीन्स मतलब सेलेनियम आईडी में जैसे कि मीन्स लिमिटेशन इज ओनली दैट कि वी कैन नॉट रन इट ऑन ऑल द ब्राउजर्स, बट अगर हमें ओनली क्रोम पे ही करना है तो फिर मतलब हम लोग जैसे जावा या कोई लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखते हैं, हम्म तो फिर अगर हमें क्रोम पे ही करना है तो फिर हम आईडी का यूज करके भी ऑटोमेशन कर सकते हैं ना। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लाइक, जैसे अगर मुझे लिमिटेशंस है, मतलब जैसे आप एडवांस लेवल से इनिशियल लेवल पे आईडी यूज कर सकते हो, बट हम्म, एडवांस लेवल पे जैसे आप जाते हो, जैसे फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज करते हैं, मुझे फाइल हम्म, से मेरा डेटा जो है वो फाइल के अंदर है, और मुझे एक्सेल फाइल से डेटा रीड करना है। ओके, मुझे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करना है, और मेरा हम्म, सारा डेटा एक्सेल फाइल में है। मुझे उस एक्सेल फाइल से डेटा रीड करना है और एप्लीकेशन के लिए उसको यूज करना है। सो ये चीजें आईडी में पॉसिबल नहीं है। ओके, सो उसके लिए आपको वेब ड्राइवर ही यूज करना पड़ता है। ओके, so id is okay when you have to test the application at basic level, but when you go for advanced levels, then you have to use different frameworks. So in that case we cannot use ide. Okay, we have to do it all those things with scripting, and for that we need WebDriver. ओके। Okay, so WebDriver, with WebDriver, at a time the script is getting executed on one browser only. वेब ड्राइवर के अंदर जो स्क्रिप्ट आपने लिखा है वो एक टाइम पे एक ही ब्राउजर पे रन होता है। जैसे अगर मेरे स्क्रिप्ट में मैंने क्रोम लिखा होगा, तो एक टाइम पे मेरा जो स्क्रिप्ट है वो सिर्फ क्रोम ब्राउजर पे ही रन होगा। लेकिन सपोज अगर मुझे मेरा जो स्क्रिप्ट है वो बहुत सारे सिस्टम्स पे एग्जीक्यूट करना है, बहुत सारे ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसे केस में टाइम लगेगा, वेब ड्राइवर में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे स्क्रिप्ट एक ही एनवायरनमेंट पे रन होता है। ओके, एक टाइम पे आपका जो स्क्रिप्ट है वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। ओके, अगर समझो मैंने क्रोम पे रन करना है, मैंने क्रोम ब्राउजर का स्पेसिफाई किया है, सो मेरा स्क्रिप्ट सिर्फ क्रोम पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सपोज मुझे ये जो स्क्रिप्ट है वो बहुत सारे ब्राउजर्स पे, बहुत सारे सिस्टम्स पे रन करना है, तो बेस्ट ऑप्शन इज यू कैन यूज Selenium Grid. Selenium Grid allows parallel execution. At one time your scripts gets executed on multiple machines, on multiple browsers. Selenium Grid से आपका जो स्क्रिप्ट है वो आप बहुत सारे मशीन्स पे एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा और बहुत सारे ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट होगा। सो अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत सारे ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हर ब्राउजर पे अगर आपको चाहिए कि आपका स्क्रिप्ट बहुत सारे ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट हो, बहुत सारे अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ एग्जीक्यूट हो, ओके, सो उस केस में यू कैन यूज Selenium Grid. Okay, so I told you about the three components. The first one is Selenium IDE. It's an integrated development environment. It is used at basic level. In Selenium IDE, we don't need to write the scripts. Scripts are auto-generated with the help of record and playback. You can make changes in the script. After recording is done, the script will get generated. You can make changes if required, and you can execute the scripts or run the script on the application. Selenium WebDriver, actually supports all the browsers. With WebDriver, means if you want to use WebDriver, you need to have, you should know scripting. वेब ड्राइवर के अंदर वेब ड्राइवर के साथ काम करना है तो आपको स्क्रिप्टिंग आना चाहिए। फॉर मतलब स्टार्ट टू एंड हर चीज के लिए वेब ड्राइवर में स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। ब्राउजर ओपन करने से लेकर ब्राउजर क्लोज करने तक, मतलब पूरा स्टार्ट टू एंड आपको जो भी एप्लीकेशन पे करना है उसके लिए स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है। ओके,
So what I told you about WebDriver, that with the WebDriver you can execute the script on different browsers. It supports all the browsers, but at one time, your script will execute only on one browser. एक टाइम पे स्क्रिप्ट एक ही ब्राउजर पे रन होता है, और WebDriver के लिए आपको स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, नहीं तो आप WebDriver यूज नहीं कर सकते. ओके, सो और ये भी बताया कि एक टाइम पे जो स्क्रिप्ट है वो एक ही ब्राउजर पे रन होता है. अगर आपको बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर्स अलग अलग एनवायरनमेंट पे स्क्रिप्ट को रन करना है तो यू कैन यूज सेलेनियम ग्रिड. ग्रिड में क्या होता है, एक ही टाइम पे स्क्रिप्ट अलग अलग मशीन्स पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अलग अलग एनवायरनमेंट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो काफी टाइम बचता है. एक ही टाइम पे आपका स्क्रिप्ट सारे मशीन्स पे अलग अलग एनवायरनमेंट पे अलग अलग ब्राउजर पे रन होता है. Yes, have you understood it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. फॉर यूजिंग सेलेनियम, अभी थोड़ा WebDriver के लिए डिटेल में बताती हूँ और थोड़ा. व्हाट इज एग्जैक्टली WebDriver? WebDriver is an API, okay, which interacts natively with browser. It's a web automation framework. Selenium WebDriver is a web automation framework which allows you to execute script on multiple browsers. Okay, it's an API. It interacts natively with browser. जब आप WebDriver डाउनलोड करते हो, आपको WebDriver के अंदर आपको जार फाइल्स दिखती है. ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस वगैरह नहीं होता है WebDriver का कि जहाँ पे आप ओपन करो, जैसे नोटपैड दिख रहा है आपको, यूजर इंटरफेस में क्या दिख रहा है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है. बट WebDriver आप ऐसे ओपन नहीं कर सकते, उसका कोई यूजर इंटरफेस नहीं है. इट इज जस्ट एन API. So it interacts natively with browsers. So WebDriver जब आप ओपन करोगे, ऐसा कोई आपको मतलब ओपन मतलब ये जार फाइल होता है. इसको उसका यूजर इंटरफेस वगैरह कुछ नहीं है. एंड दैट्स व्हाई वी यूज Eclipse. अगर आप Selenium IDE देखते हो तो Selenium IDE के अंदर यूजर इंटरफेस है. जैसे यहाँ पे देखो, ये Selenium IDE आपको दिखाती हूँ. जब आप Selenium IDE देखते हो, you see the user interface of Selenium IDE. ये देखो Selenium IDE. See, this is Selenium IDE. ये देखो, this is Selenium IDE. So Selenium IDE का ऐसा यूजर इंटरफेस आपको दिखता है, बट WebDriver का कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं है. ओके, आपको लगे तो पहले मैं थोड़ा सा IDE के बारे में बता देती हूँ. WebDriver comes as a jar files. It doesn't have any user interface. And that's why for writing the script we use Eclipse. जबकि Selenium IDE में कैसा यूजर इंटरफेस है, तो वहीं के वहीं आपको स्क्रिप्टिंग मतलब जो भी स्क्रिप्ट जनरेट होती है वो दिखती है. IDE का यूजर इंटरफेस है बट WebDriver का नहीं है. Okay, so now if you want to use WebDriver, for using WebDriver we need Java or JDK must JDK must be there on our systems. Okay, browser must be there.
Okay, as we are going to use Java language for scripting, JDK must be installed. Browsers we need on our system. Okay, why we need browsers on our system? Because Selenium, it can test the application on browsers. Selenium जो है वो एप्लीकेशन को ब्राउजर्स पे टेस्ट करता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट करता है. सो वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है उसके लिए आपको ब्राउजर्स चाहिए. ब्राउजर के थ्रू ही किसी वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो. और सेलेनियम जो है वो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है. सो किसी भी वेब एप्लीकेशन को टेस्टिंग करना है तो ब्राउजर लगता है. विदाउट ब्राउजर हम लोग किसी भी कोई भी वेब एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते. We need Eclipse or any editor where we can write scripts, and we also need WebDriver jar file. Okay, so we need Java because we are going to use Java as a scripting language. We need browsers as we execute the script on browsers because Selenium is used for web application testing. So in order to open the application, in order to perform action on the application, we need browsers. And also we need Eclipse as an editor because Eclipse we need for writing scripts. ओके, एक्लिप्स के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं. जैसे जावा के लिए आप एक्लिप्स यूज करते हो एडिटर, वैसे ही वेब ड्राइवर के लिए भी हम लोग एक्लिप्स यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज एक्लिप्स एज एन एडिटर. एंड लास्टली we also need WebDriver jar files. We also need WebDriver jar files. Okay, so we need all these things. We need JDK or Java as we are going to use Java for scripting language. As a scripting language, we need browsers as we have to test the application on browsers. We need Eclipse for writing the scripts. Okay, and lastly we also need WebDriver jar file. Yes, is it understood to you? Anything which is not understood? Yes, ma'am, we are getting it. Okay, that's good. Great. So, yeah, only the one question is what exactly the jar files means? जार फाइल मतलब क्या होता है? जो कोड होते हैं ना उसको पैकेज किया जाता है, जार वार. Okay, मतलब it's to build and to have you can use so that you can use it as an application. Okay, so developers, what the developers does, developer write the program codes, then they, in order to build it, they package it in jar or war files. So ऐसे बहुत सारे build tools होते हैं, जैसे Maven है, Gradle है, Ant है. तो ये सारे tools क्या करते हैं, जो भी कोड से उनको build करते हैं, मतलब ये इसमें पैकेज करते हैं jar और war files में, फिर हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन एप्लीकेशन. Okay. ओके, सो ये देखो ये सारी चीजें हमें लगती है. Then okay, so now we will start Eclipse. All of you, if you don't have, you already have it, so please open it. Open Eclipse. Have you started? Let me know once you started, because first we have to create a workspace. जावा के लिए जो वर्कस्पेस बनाया था वो भी यूज किया तो भी चलेगा,
या नया वर्कस्पेस बनाना है आपको। ओके, जैसे यहाँ पे एक वर्कस्पेस दिख रहा है, सिलेक्ट डायरेक्टरी एज वर्कस्पेस। सो ये वो एक लोकेशन रहता है, एक फोल्डर रहता है जिसके अंदर हमारे सारे जो स्क्रिप्ट्स है, जो कोड्स है वो सेव होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वर्कस्पेस बनाना पड़ेगा। मैं डी ड्राइव पे बना रही हूँ। मेक अ न्यू फोल्डर। बैच का नाम क्या है? एक मिनट। थ्री आ रहा है, सिलेनियम जावा। When your batch started? Yeah, October. Yes, correct. I think it is not created. You have to select the workspace. सब लोगों ने वर्कस्पेस क्रिएट किया? Yes, ma'am. Yes. ग्रेट। Yes. अभी क्या करना है बताती हूँ। First, what we will be doing is, first we are going to create a project. So right click and create a project. Java project you have to create. यहाँ पे देखो Eclipse के अंदर मैं एक Java project create कर रही हूँ। Now project is created. अभी आपको क्या करना है, जो भी फाइल्स हमने डाउनलोड करी थी ना वेब ड्राइवर वगैरह की, वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, ऐड करनी है। तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। अच्छा, फर्स्ट टेल मी, हैव यू डन क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. All, yeah, good. So now the next is, you have to right click on the project, build path, configure build path. Then you have to go to libraries. सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सो yes. अभी, यस थैंक यू। सो अभी लाइब्रेरीज में देखो, लाइब्रेरीज में क्या करना है आपको, ऐड एक्सटर्नल जार। यू टू सिलेक्ट ऐड एक्सटर्नल जार्स। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं सेलेनियम का जार फाइल डाउनलोड किया था। अच्छा, एक और चीज, आपका शायद सेलेनियम का जार फाइल डाउनलोड्स में होगा।
जैसे आपने डाउनलोड किया होगा तो ये आपका डाउनलोड्स में रहेगा। ओके, तो आपको ये क्या करना है, ये सारी चीज़ें जैसे अभी देखो मैं कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ कर सकते हो। प्रेस कंट्रोल बटन एंड सिलेक्ट ऑल दिस फाइल्स। प्रेस कंट्रोल बटन प्रेस करके सारी फाइल्स को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद कहाँ पे कहीं तो भी किसी तो भी ड्राइव में जाओ, कोई भी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वहाँ पे एक फोल्डर बनाओ। ये देखो मैं बना रही हूँ सेलेनियम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे ये सारी फाइल्स जो आपने कॉपी की वो पेस्ट करो। उसके बाद ये सारी जो फाइल्स है वो जिप फाइल्स है, इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सेलेनियम को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। ये देखो बहुत सारी फाइल्स है इसमें। अरे बाप रे, पहले वाले वर्जन में इतनी नहीं थी फाइल्स। फाइन, अभी क्या करो ऑल ऑफ यू, सिलेक्ट देम ऑल, प्रेस कंट्रोल ए, सिवाय लाइब्रेरी फोल्डर के बाकी सारी चीजें सिलेक्ट कर लो। ये देखो मैंने सारी सिलेक्ट की, लाइब्रेरी फोल्डर को हटा दिया। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और फिर कंट्रोल बटन को प्रेस करके मैंने इसको हटा दिया, एंड देन आई विल सिलेक्ट ऑल दिस फाइल्स। उसके बाद लाइब्रेरी फोल्डर में जाके सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है एंड ओपन। ये देखो सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। वापिस से बताती हूँ आपको। राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, libraries tab, add external jars, select all the jars which are there inside the library folder and outside the library folder। सारी फाइल सेलेक्ट करनी है। ये देखो मेरी हो चुकी है। उसके बाद लाइब्रेरी फोल्डर के बाहर जाऊंगी मैं, और लाइब्रेरी फोल्डर के नीचे भी जो फाइल्स है वो सारी सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। ओके, लाइब्रेरी के नीचे जितने भी लाइब्रेरी फोल्डर के नीचे फाइल्स है वो कंट्रोल बटन प्रेस करके मैंने सिलेक्ट कर ली एंड ओपन हो गया। एंड देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई क्लोज। आप देख सकते हो सारी फाइल्स, सारे क्या बोलते हैं, जार जो भी आपने सिलेक्ट की सारी फाइल्स यहाँ पे। गेटिंग, आपने किया सबने सिलेक्ट। यस मैम मेरा नेटवर्क इशू की वजह से मैंने जार फाइल डाउनलोड नहीं किया था ना, तो मैं आफ्टर लेक्चर कर लूंगी ये। कोई बात नहीं है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ लगे तो, या फिर आप कर लेना, ओके। या फिर मैं आपको चाहिए तो मैं कर दूंगी। या यस मैम। वेरी गुड। या यस पल्लवी, आपका हो गया। Yes. अनुराधा, अनुराधा, have you done? यस यस मैम। Great. Yeah. So now after it, after this is done, the next thing is we have to go to SRC, and then we have to create a package. Excuse me. सबसे पहले अभी क्या करेंगे, पैकेज बनाएंगे, और पैकेज के अंदर एक क्लास बनाएंगे। com dot launching browsers, it's generally a naming convention, so I started with com.
नहीं भी दिया तो चलेगा, जनरली पैकेज नेम स्टार्ट्स विद जैसे कॉम डॉट स्टार्ट करते बहुत सी जगह, या सीधा आपने लॉन्चिंग ब्राउजर लिखा तो भी चलेगा। वाई आई हैव रिटन लॉन्चिंग ब्राउजर्स, क्योंकि अभी जो हम लोग कोड लिखेंगे उसमें हम लोग ब्राउजर लॉन्च करने वाले, मतलब आपका जब स्क्रिप्ट रन होगा सेलेनियम क्या करेगा, ब्राउजर ओपन करेगा और ब्राउजर पे एप्लीकेशन ओपन करेगा। अभी इस पैकेज के अंदर मैं क्लास बनाने जा रही हूँ। आई विल राइट क्लिक ऑन द पैकेज, आई विल क्रिएट अ न्यू क्लास। कैसे कर रही हूँ सब लोग ध्यान से देखो, पैकेज, राइट क्लिक ऑन द पैकेज, न्यू क्लास, launching Chrome, public static void main, you have to add main function। अगर नहीं ऐड किया तो टाइप करना पड़ेगा, मेन के अंदर ही कोड लिखना है हमें। सो सिलेक्ट मेन फंक्शन, public static void main। Yes, done. Till here. Yes. Yeah. System dot set property। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी में आपको कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है। सी, ये वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए टूल है। सो वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए वी नीड अ ब्राउजर। ओके, सो सबसे पहले आपको सेलेनियम से ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर पे एप्लीकेशन ओपन करना है। ओके, सो ब्राउजर ओपन करना है तो कौन सा ब्राउजर ओपन करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। आई एम गोइंग टू लॉन्च क्रोम ब्राउजर। ओके, वेब ड्राइवर के थ्रू मैं कौन सा ब्राउजर ओपन कर रही हूँ, क्रोम। सो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, ये लोअर केस में लिखना है। ओके, कैपिटल में नहीं लिखना है, लोअर केस। एंड देन जो क्रोम ड्राइवर की EXE फाइल हमने डाउनलोड करी थी उसका लोकेशन देना है यहाँ पे। ओके, जो क्रोम ड्राइवर EXE फाइल डाउनलोड करी थी उसका लोकेशन देना है। हाउ टू गिव द लोकेशन, जरा ध्यान से देखो। क्रोम ड्राइवर का जो EXE फाइल है वो ये है, क्रोम ड्राइवर। ये देखो क्रोम ड्राइवर, इसको मैंने सेव किया था, कहाँ पे सेव किया था, डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर सेलेनियम सॉफ्टवेयर, आई थिंक इसके अंदर है, या सेलेनियम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो क्रोम ड्राइवर, ये देखो ये आ गया एप्लीकेशन। ओके, ये क्रोम ड्राइवर EXE है, इसका लोकेशन आपको देना है स्क्रिप्ट के अंदर। कैसे देंगे, जिस इस क्रोम ड्राइवर एप्लीकेशन को राइट क्लिक करो, शिफ्ट की प्रेस करो, शिफ्ट की प्रेस करके राइट क्लिक करो। शिफ्ट की प्रेस करके जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी एज पाथ। सो इसका पाथ कॉपी हो जाएगा क्रोम ड्राइवर ये एप्लीकेशन का।
यहाँ पे मैं पाथ दे रही हूँ. You can see I am going to give the location of the Chrome driver exe. ये Chrome driver exe का लोकेशन हम लोग क्यों दे रहे हैं, ये देखो आप देख सकते हो. D drive, Selenium folder, Selenium software, Chrome driver exe. इस Chrome driver आप जो exe फाइल है उसका लोकेशन मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि ये जो exe है it helps to launch the Chrome browser. Actually it executes this Chrome driver exe and this exe invokes, this exe launches the Chrome browser. Okay, ये exe क्या करती है, Chrome browser को invoke करती है, Chrome browser को launch करती है. अभी यहाँ पे कुछ एरर जैसा दिख रहा है तो उसको डबल स्लैश करो. ओके, उसके बाद हमें कोड लिखना है. अभी एक्चुअली जावा आपने सीखा हुआ है सब लोगों ने, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Good. So actually technically if you see WebDriver जो मैंने बताया था ऑलरेडी कि एक वेब ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है. WebDriver is an API. It has many classes, many interfaces which helps to automate web application testing. So if you want to automate web application testing, there are many classes and interfaces available in WebDriver API. Okay, so in WebDriver API there is a WebDriver interface. Okay, there is a WebDriver interface. Okay, and this interface is implemented by different browser classes. Okay, so WebDriver you know actually यहाँ पे जो WebDriver लिखा है मैंने, ये एक इंटरफेस है. जावा में आपने इंटरफेस सबने सीखा है, राइट? क्या होता है इंटरफेस? ये देखो मैं टेक्निकली जो भी बता रही हूँ आपको दिखा रही है, एक मिनट को. ये देखो WebDriver. In WebDriver, as I told you that WebDriver is an interface. यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन है, हमने अभी डाउनलोड किया था सेलिनियम, यहाँ से डाउनलोड किया था. अभी इसका API डॉक्यूमेंटेशन देखो आप लोग. ओके, यहाँ से सेलिनियम डाउनलोड किया, उसी के नीचे देखो API डॉक्यूमेंटेशन. You have to go to API documentation. You have to go to all classes. In all classes, if you scroll down, if you go scroll down, you see WebDriver. What is WebDriver? What is WebDriver? It's an interface. Okay, WebDriver it's a child interface of search context. Search context parent interface है और WebDriver उसका child interface है. Okay, so WebDriver is a child interface of search context. Okay, WebDriver is an interface. What is interface in Java? Do you remember? मैम इंटरफेस नेक्स्ट वीक में होने वाला है. Sorry? इंटरफेस नेक्स्ट वीक में होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं एक्चुअल इंटरफेस. Okay. So interface is nothing but interface is a collection of abstract methods and constant data members. Okay. आपको abstract class तो पता है कि नहीं पता है? Yes. All of you know abstract class? Yes, ma'am. Okay. So interface जो होता है, it is a collection of
abstract methods and constant data members. Okay, interface, you can say it is similar to class. It's a blueprint of a class, आप बोल सकते हो basically. Class के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? Class has methods, class has data members. इंटरफेस के अंदर भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होती है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स? हु विल टेल मी व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स? नहीं पता है? Like we hide data, data security. No. Abstract methods are those methods which don't have implementation. Abstract methods are the methods which are just declared. For abstract methods, no logic is given. For example, let's say here, I'll show you. Now I have created a shape class. Now I'm going to create a method here. ये ऐसी मेथड हम लोग हमेशा लिखते हैं, राइट? सुनो, राइट? ये किस टाइप की मेथड है? This is a concrete method. Concrete methods are the methods which have logic written, which has implementation. And अगर मैं suppose यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका लॉजिक निकाल लेती हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. इस मेथड का नाम तो लिखा है मैंने, और लेकिन उसके बाद उसका लॉजिक नहीं दिया, सेमीकोलन लगा दिया सीधा. इसका मतलब इस मेथड को मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रही हूँ, उसका लॉजिक प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ. तो ऐसी जो मेथड है, अगर आप ऐसी कोई मेथड लिखते हो, उसको आपने सिर्फ डिक्लेयर किया और सेमीकोलन लगा दिया, उसका लॉजिक लिखा ही नहीं है, तो कंपाइलर आपको एरर देता है. देखो, कंपाइलर आपको बोल रहा है कि एक तो इस मेथड का बॉडी ऐड करो, उसको लॉजिक दो, या फिर इस मेथड को क्या डिक्लेयर करो, इस मेथड को क्या डिक्लेयर करो? एब्स्ट्रैक्ट. ओके, सो मुझे क्या करना है? इस मेथड को मैं क्या डिक्लेयर करूंगी? एब्स्ट्रैक्ट. अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया इस मेथड को, तो ये जो क्लास है उसको भी क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट. कोई भी क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो क्लास क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर किसी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस क्लास को आपको क्या डिक्लेयर करना पड़ता है? एब्स्ट्रैक्ट. Okay, an abstract class is a class which don't like for which we cannot create an object. Abstract class वो क्लास होते हैं जिसके अंदर abstract methods है. Abstract method मतलब वो मेथड जिनका लॉजिक दिया ही नहीं है, जैसे एरिया का मैंने लॉजिक ही नहीं लिखा है, सो एरिया इज व्हाट? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. सो किसी क्लास के अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस क्लास को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट. अगर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते. उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने चाहूँ ना, तो मुझे एरर आएगा. ये देखो, जरा ध्यान से देखो.
You can see here it is showing error. देखो क्या error आ रहा है, cannot instantiate the type shape. क्या error आ रहा है, cannot instantiate the type shape. Why? Because shape is abstract. Getting? As shape class is an abstract class, we cannot instantiate it. We cannot create an object. Instantiate मतलब क्या, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना. इंस्टेंशिएट करना मतलब किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करना मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाना. शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि वो क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है. किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. ओके, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. सो वैसे ही आप लोग, मतलब आपका, मुझे नहीं पता था कि आपको नहीं पढ़ाया है, ये अभी तक हुआ नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा बता रही हूँ. वैसे ही आप इंटरफेस भी बना सकते हो जावा में. बट इंटरफेस जो होता है, ये देखो, ये इंटरफेस जो होता है उसके अंदर कंपल्सरीली जो मेथड्स होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है. और जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं इंटरफेस के अंदर वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं. एंड ऑल्सो हम लोग इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस को या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं. वी कैन इनहेरिट इट. इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनको आप इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हो. इनको कोई क्लास इनको इनहेरिट कर सकता है. इनहेरिटेंस हुआ है आपका? Yes, ma'am. हाँ, तो जो इंटरफेस है या जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनका ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता है, बट एनी क्लास कैन इनहेरिट इट. मतलब इंटरफेस के आप इम्प्लीमेंट कर सकता है कोई क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी इनहेरिट किया जा सकता है. ओके, आई थिंक बहुत ज्यादा हो रहा है क्या आपको जावा, कि अब मुझे नहीं पता है कितना बेसिक हुआ है आपका. नहीं, इनहेरिटेंस अभी मतलब चल ही रहा है एक्चुअली. अच्छा, Yes. no issues, then we will stop here for today. We'll take it next lecture, next weekend. What do you think? Because अगर मैं आपको ऐसा confusion नहीं होना चाहिए, right? Yeah. I think. What about others? हाँ. Yes, ma'am. Just want to inform, like next Saturday I will not be available, so I will go through this recording class. Okay, from morning to evening कोई भी टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पल्लवी? No, there's a function at my place.